से रिक्वेस्ट है कि आज शाम तक आप रिपोर्ट भेज दीजिएगा ईमेल पे, और एल्स हम लोगों को डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट पब्लिश करनी पड़ेगी इन द ग्रुप. So it's a request. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Namaskar. नमस्कार सर. गुड आफ्टरनून. माइक्रोसॉफ्ट टीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ठीक है, वेरी गुड. हाँ सर, वो इसीलिए रिक्वेस्ट. हाँ, थोड़ा वो क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में वो गूगल टीम, गूगल और ये सब गूगल मीट यूज कर लेते हैं, आसान होता है. माइक्रोसॉफ्ट टीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. जी सर. सो गुड आफ्टरनून ऑल द 5 मिनट वेट करें मैम. 5 मिनट्स. हाँ सर. 5 No, मिनट. sir. No, sir. The session is already started. Good afternoon all the participants, and good afternoon sir. So this is the third session, and the topic of this session is Dr. Ambedkar, Indian Constitution and the case for social justice. And to discuss this topic, we have with us Honorable Resource Person Dr. Viswajit Mohapatra. He is an associate professor specializing in politics and international relations in the Department of Political Science, Northeastern Hill University, Shillong. He also directs research program in international relations, and sir holds a PhD and MPhil in international relations from JNU, master's degree in political science from University of Delhi, and BA honors in political science from Ravenshaw College, Cuttack. Besides, he has also attended the advanced international program in conflict resolution at the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University, Sweden, and School of Peace Studies and Conflict Transformation course conducted by Amen and Payap University, Thailand. Sir has written 2 books, Informatics for Peace and Development in South Asia, Perspective of SAARC, and New Information Technologies, India and the North-South Relations. Sir is also visited a number of foreign countries in connection with his academics assignment. His broad research tracks are politics, international relations, and comparative politics. Launch बंद करने कौन? Particular research interest, etc. We welcome you, sir, and over to you, sir. Am I audible? Yes, yes, you are audible. So I think sir has muted himself for a minute. Sir, over to you. Please start. You may continue, sir. बस 1 मिनट दीजिए, मैं कर देता हूँ. हाँ सर. थोड़ा सा मैम Sure. ले लेता हूँ. Sure. I'm very sorry कि this was a family call. So मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको वेट कराना पड़ा. But I think at the beginning I must express my gratitude to the UGC HRDC director and her colleagues for having organized such a very interesting refresher course.
and also for allowing me to speak on Ambedkar, Indian Constitution in the case for social justice. कभी-कभी बीच में हिंदी में बोलेंगे, but I think most of the esteemed participants must be very comfortable in English. Sir, bilingual will be fine because most of the participants are requesting for Hindi. Right, sir. बोलेंगे सर, बिल्कुल सर, ट्राई करेंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग आज जो when we are going to talk about अम्बेडकर, भारतीय संविधान और जो समाज जो बोलते सोशल जस्टिस के बारे में, इसमें we have to see as to how Ambedkar tends to have been very much influenced by his own personal experience, and how Dr. Ambedkar has also laid a kind of a very sound, solid footprint on the Indian society, which tends to have made the case of social justice to be a kind of a perennial cry. आज ये देखा जाता है जब हम सामाजिक सुरक्षा एक सोशल जस्टिस का एक कारण होता है, जिसमें देखा जाता है कि जब भारतीय समाज के बारे में हम बात करते हैं, भारतीय समाज में we see that it is fraught with a lot of social problems. बहुत सारे समस्याएं अभी तक भी मौजूद है, जो कि प्राक स्वतंत्रता समय से लेकर आज तक. और ये देखा जाता है कि जब भी हम लोग भारतीय समाज के बारे में कल्पना करते हैं या उसके बारे में कोई लिखन या पठन करते हैं, ये देखा जाता है कि Indian society is often described as a very sharply divided society, given the fact that there are not only two classes of people, but there are also different kind of sections of population who tend to be located at various sections of our Indian society, and which tends to be not only economically, hierarchically organized, but also socially organized. हम लोग देखते हैं कि सामाजिक तौर पर जब हम अपने समाज के बारे में कल्पना करते हैं या उसके बारे में पठन करते हैं, तो देखा जाता है कि भारतीय समाज को हमेशा एक डिवाइडेड सोसाइटी के हिसाब से देखा जाता है. और भारतीय समाज में, जैसे कि विश्व की कोई और समाजों में जिस तरह की आर्थिक दुर्गतियां रही हैं, इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसी रहा है, उसमें ये देखा जाता है कि भारतीय समाज में सामाजिक तौर पर भी उस तरह की जो बोलते हैं विकृतियां भी देखने को मिलता है. क्योंकि एक जो भारतीय समाज के बारे में जब भी हम लोग कल्पना करते हैं, कभी हम ये नहीं कह पाते कि भारतीय समाज में हमेशा भाईचारा, हमेशा सौहार्दपूर्ण, हमेशा शांत वातावरण रहा है. भारतीय समाज के बारे में जब भी whenever we tend to describe Indian society can be very well described to be a society which is full of struggles, and these struggles are primarily led by various sections of the Indian society, and more particularly it is led by the so-called socially marginalized sections of Indian society, which is primarily within quote the scheduled caste and the scheduled tribe people. I think when you talk of the scheduled caste, scheduled tribe, हमको ये देखा जाता है कि जो scheduled caste population है, वो scheduled caste population भारतीय समाज में जिस तरह की विकृतियां रही है, it has suffered most from those kind of distortions which had crept into Indian society because of the presence of the Indian caste system. I think इस समय जब हम लोग भारतीय आज भारत बड़ी गर्व से 75वीं स्वतंत्रता साल मना रहा है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि 75 साल बाद भी जब हम भारतीय समाज की जो हमारी जो भाई बहनें रहते हैं, उनके बारे में जब हम उनके बारे में सोचते हैं, कभी समय निकाल के either as a researcher or as an activist or even as a co-resident and citizen of a country, we find that the scheduled caste tend to be still at the receiving end of Indian society and not been able to move up to the kind of socio-economic height of achievements or developments that has been the case with the other sections of the people, particularly the so-called the rich and the upper caste population of Indian society. I think whenever we talk about the struggle against the social injustice that has been part of the Indian society, उसमें अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि अम्बेडकर जी बल्कि अपनी लेखन से, अपनी चिंताओं से, अपनी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो सेट किए हैं अगेंस्ट दी कास्ट बेस्ड इंडियन सोसाइटी, उसमें अम्बेडकर को सर्वोपरि माना जाता है. हम लोग जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं, ये देखा जाता है कि गांधी और अम्बेडकर की
हमेशा चर्चा रही है, लेकिन वो चर्चा केवल उसी हाल तक सीमित है, जबकि हम लोग जो 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 रिजर्वेशन पॉलिसी है एज ए पार्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, उसके वहीं तक सीमित होता है। और जबकि आप स्वतंत्र गांधी जी का ये 100 पुण्यतिथि है, 100 साल पुण्यतिथि है, अभी वो देखा जाता है कि गांधी जी, जबकि हमारे फादर ऑफ द इंडियन नेशन है, गांधी जी से ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कास्ट Dr. Ambedkar has worked on annihilation of the caste, and he has fought for the elimination of the caste-based Indian society, a caste-based system in the Indian society, rather than Gandhi. Although Gandhi is often treated as equivalent to Dr. Ambedkar. But Ambedkar के बारे में जब हम ये चर्चा करेंगे तो ये देखा जाता है, अंबेडकर की जो पर्सनल निष्ठा रहा है, वो निष्ठा रहा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज में उसकी स्वतंत्र स्थान, और जो सामाजिक न्याय के तरफ, और सामाजिक न्याय सबके साथ सामाजिक न्याय हो, इसके बारे में अंबेडकर की जो व्यक्तिगत निष्ठा रहा है, this has remained always unparalleled in the sense कि और इस बारे में जब हम बात चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है अंबेडकर जी की जो स्वतंत्रता, जो सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बारे में जिसके बारे में वो हमेशा बात करते हैं, वो बात हमेशा जो सामाजिक तौर पे जो सबसे शोषित, जो बोलते हैं निष्पेषित, जो सामाजिक वर्ग है, प्राइमरी शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, उनके तरफ हमेशा वो समाज की ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। और इस तरह की और अंबेडकर जी का जो संग्राम रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समय से, और उसके बाद भी जब भारत एक आजाद राष्ट्र बना, उसमें देखा जाता है कि अंबेडकर जी का जो योगदान रहा हमारी भारतीय समाज के प्रति, वो योगदान बहुत ही सर्वोपरि है। तो ये देखा जाता है कि, और हम लोग जब अंबेडकर के बारे में बात करते हैं तो अंबेडकर के बारे में ये देखा जाता है कि अंबेडकर जी हर तरह की जो सामाजिक तौर पे जो उनका अवदान है, वो देखा जाता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से वो भारतीय समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए और सामाजिक न्याय की तरह भारतीय समाज को आगे बढ़ावा मिले, उसके हिसाब से उनकी जो दान है वो सबसे सर्वोपरि है। और हम लोग ये देखते हैं कि जबकि अंबेडकर जी अपने लेखन में, हम लोग को पता है कि जब बहुत सारे चीजों के बारे में आजकल भारतीय विश्वविद्यालयों की जो टेक्स्ट बुक है, जो पठन होता है, उसमें अंबेडकर जी के बारे में बहुत ही कम ही चर्चा है, क्योंकि ये हमारी समाज की एक विडंबना रहा है कि हम लोग अंबेडकर जी को हमेशा शेड्यूल कास्ट के लीडर के हिसाब से शायद अपनी मन से देखते हैं, rather than looking at Ambedkar as a pioneering figure for building up an Indian society based on social justice and based on fraternal feelings amongst all the Indians within our own country. और इसमें देखा जाता है कि अंबेडकर जी के बारे में जबकि कम, आज अंबेडकर जी के बारे में अभी भी देखेंगे, जबकि अंबेडकर जी के बारे में वर्तमान की सरकार जिस तरह की निष्ठा दिखाता है, उसमें ये भी पता चलता है कि वो निष्ठा शायद पूरे, इट्स नॉट एन ऑल राउंड काइंड ऑफ ए कमिटमेंट, बट रादर द कमिटमेंट सीम्स टू बी मोर पॉलिटिकल देन सोशल। अब जबकि कोई इस तरह की निष्ठा जब सामाजिक तौर पे कोई अपना छाप नहीं छोड़ेगा, तो वो निष्ठा कोई भी सरकार की तरफ से, कोई नीति से हो या कोई पॉलिसी से हो, उसमें ये देखा जाता है कि वो निष्ठा ज्यादा दूर तक टिकता नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक है। और हम लोग को ये पता है कि राजनीतिक तौर पे जो कोई नीति की हम निर्धारण करते हैं या उसकी आवाहन करते हैं, तो वो पता चलता है कि वो नीतियां जरूर की कम समय के लिए उपलब्ध रहेगा। और ये देखा गया कि जबकि अंबेडकर जी का हम लोग जब बात करेंगे थोड़ी देर में, कि अंबेडकर जी की जो संग्राम रहा है भारतीय समाज में, का जो जातियों की, जो उच्च जातियों की जो नीतियों के बारे में, वो देखा जाता है कि वो संग्राम को इस तरह के हम लोग उसको अच्छी तरह से पॉपुलराइज नहीं कर पाए। अभी तक भी वो अंबेडकर जी का नीतियां जो है वो शायद संविधान में बंद पड़ा है, और हम लोग वो जो नीतियां जो संविधान में अंबेडकर जी के
कोशिश के चलते जो संविधान में स्थान मिला है उसको हम लोग अपने दिलों में, अपनी समाज में और अपनी जो जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं, जो व्यवहारिक तौर पर हम उसको अच्छी तरह से नहीं अपना पाए हैं। और ये जो विडंबना है, ये शायद भारतीय समाज को आगे बढ़ने में एक तरह से रोक रहा है। और इसीलिए कि अंबेडकर जी के जो संग्राम रहा है उसके बारे में हमको चर्चा करना चाहिए। हम लोग उसके बारे में समाज में हर वर्गों को उसके बारे में उनको जानकारी देना चाहिए और उसको हम लोग अपने दैनंदिन व्यवहारिक जिंदगी में उसको हम लोग अपनाना चाहिए। अपनाने से जो जो जिस समाज में हम समाज में रहते हैं वो समाज एक अच्छी तरह it will be a kind of a wholesome, people oriented, public policy devoted society which will be full of justice for all. अब भारतीय संविधान में आई थिंक इस बारे में एक चीज के बारे में मैं गौर करना चाहता हूं कि उसमें संविधान में एक जो हम लोग बोलते हैं कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल में जो कहते हैं न्याय सबके प्रति है। आई थिंक उसको थोड़ा सा राजनीतिकरण आज की सरकार कर दिया है, जिसको वो कहते हैं सबके साथ न्याय। सबके साथ न्याय जो है वो आई थिंक वो अंबेडकर की एक बहुत ही ओरिजिनल आइडिया था कि जबकि हम लोग जनजातियों के बारे में हम लोग बात करेंगे उसमें ये चाहते थे कि इसके साथ बाकी जो जातियां भारतीय समाज में रहते हैं उनके तहत भी न्याय किया जाए। सर ये हिंदी ठीक चल रहा है ना? सर ये हिंदी ठीक चल रहा है? यस सर, यस सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग हिंदी में इतना पठन नहीं करते हैं, वी स्पीक मोस्टली इन इंग्लिश। एनीवे, कोशिश करते हैं मैम हिंदी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जब लेक्चर देना थोड़ा सा दिक्कत होता है। एनीवे, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो इसमें हम लोग जब अम्बेडकर के बारे में जब बात करते हैं, अम्बेडकर जी की जो जिस तरह की योगदान रहा है भारतीय समाज के प्रति भारतीय संविधान के जरिए, वो हमको ये देखने को मिलता है कि अम्बेडकर जी अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस तरह की स्ट्रगल, जिस तरह की संघर्ष उनको झेलना पड़ा है और जिस तरह की समाज में जो हम लोग बोलते जो विकृतियां रही थी कास्ट सिस्टम के नाते, डिस्क्रिमिनेशन के नाते, वो सारे चीजें अम्बेडकर को जो अम्बेडकर जिस तरह की योगदान किए हैं उनकी तरफ उनको एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जब अम्बेडकर के बारे में हम बात करते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में आई थिंक हम लोग थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े हैं कि अम्बेडकर जी का किस तरह के महार समाज में उनके जन्म हुआ था, किस तरह की राजा की जो दान था वो दान से वो लंदन पढ़ने गए थे और पढ़ने के बाद जब वो पढ़ के आए तो उसके बाद वहीं उनके लंदन में उनकी जो राजनीतिक चिंताधारा और आर्थिक चिंताधारा की बहुत तेजी से विकास हुआ था। उसमें उनको अपने समाज में जिस तरह की विकृतियां चल रहे थे उसके बारे में उनको ज्यादा सोचने के लिए मौका मिला था और उसके तहत अम्बेडकर जब भारत लौटे, जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जोड़े और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, वो सारे जो उनकी अनुभूति था उनको बहुत अच्छी तरह से संविधान में एक तरह की वैकल्पिक समाज जो समाज उस समय भारत में उपस्थित था उसके वैकल्पिक समाज परिकल्पना करने के लिए बहुत ही बल मिला है। तो उसमें हम लोग कहेंगे जब अम्बेडकर जी भारतीय समाज के बारे में कल्पना करते थे, अम्बेडकर जी को इंडियन सोसाइटी बहुत ही ऑप्रेसिव लगता था, बहुत ही निष्पेषित, बहुत ही जैसे समाज में किसी तरह की व्यक्ति की विकास की कोई एश्योरेंस नहीं था और इनको समाज हमेशा लगता था इट वाज वेरी वेरी ऑप्रेसिव इन नेचर। और उसमें जब अम्बेडकर जी समाज की समाज के ऑपरेशन के बारे में शोषण के बारे एक भारत समाज एक शोषित समाज था, वो शोषण की जो कारण जब वो ढूंढ रहे थे उनको ये शोषण की मुख्य कारण इनको लगा कि भारतीय समाज में जिस तरह की जाति प्रथा चली थी वो जाति प्रथा का चलते हुए ये भारतीय समाज की एक बदलाव आ गया था जिसको जैसे समाज शोषित समाज में बदल गया था। तो उसमें वो सोच रहे थे कि जो जाति प्रथा चला हुआ था भारतीय समाज में, वो जाति प्रथा की इस तरह पकड़ हर वर्गों के प्रति, हर वर्ग इधर हम सोचते हैं कि जो उच्च जातीय थे उनके ऊपर इस तरह की प्रभाव डाला हुआ था कि उसमें जो भारतीय समाज में जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और
जो राजनीतिक जो शोषण हो रहा था उसके लिए वो हमारी भारतीय समाज की जाति प्रथा को वो दायी मानते थे। और इसीलिए अंबेडकर जी एक समाज में जो सामाजिक जिस तरह की शोषण हो रहा था उसके बाद उसके खिलाफ एक तो कैंपेन चलाए। जब जब भारत लौट के उसके बाद वो देखे कि जो हमारी जो बोलते हैं ना ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो पॉलिसीज हम लोग फॉलो करते थे उस समय भारतीय समाज में उसकी अंबेडकर बहुत कड़ी तरह से आलोचना किए थे। जबकि वो सोचे कि जो हमारी समाज की जिस तरह की ऑर्थोडॉक्सी की बोलबाला था वो ऑर्थोडॉक्सी को व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ वो मानते थे। उसमें ये देखा कि और जो भारतीय समाज में जो हमारी राजनीतिक शक्तियां थी, जो हमारी जो उच्च जाति और जो राजनीतिक पदभार में घुसी थे, उनकी जो रिलक्टेंस था कि समाज में किस तरह की सुधार लाए, वो सुधार के खिलाफ उन लोग उच्च जातियों की जो सुधार के खिलाफ जो चिंताधारा था, वो चिंताधारा को भी अंबेडकर जी बहुत बुरी तरह से डिसअप्रूव किए थे। तो ये देखते जब अंबेडकर जी जब अपने का जो जाति प्रथा जो भारतीय में चला था, अंबेडकर जी इसके बारे में जोर देते रहे। आई थिंक अंबेडकर जी रिटन अबाउट एनिहिलेशन ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम। उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट जिसको हम आज के जमाने में दलित कहते हैं, वो दलितों की किस तरह की स्वतंत्रता बढ़े, किस तरह की उनमें एक तरह की अच्छी भावना पैदा हो, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से वो उनके अंदर मजबूती आए। उसके लिए अंबेडकर जी अपनी 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 जो कर्म शैली में, अपनी लेखन में, अपनी बोलचाल में उसकी तरफ हमेशा जोर देते रहे। और अंबेडकर जी ऐसे ये बोलते रहे कि इस तरह की जो व्यक्ति जो दलितों की जो स्वतंत्रता और उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक, सांस्कृतिक उनके लिए अंबेडकर जी सोचते थे कि 3 दिशा में उसके बारे में जब पहल होगा तभी दलितों की जो आज की जो दयनीय स्थिति है उसमें जरूर सुधार आएगा। और उस पे अंबेडकर जी ये दलितों की जो आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के उनकी जो सांस्कृतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अंबेडकर जी 3 चीजों पे बल दिए थे। एक तो शिक्षा, और एक तो एजुटेशन मतलब संग्राम, और एक तो दूसरा चीज कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आदमी अपना संगठन। तो संगठन और शिक्षा, संगठन और हम लोग कहते हैं जो संघर्ष, ये तीनों चीजें के बारे में अंबेडकर जी बहुत ही जोर देकर बोलते थे कि इस तरह 3 चीजों में जबकि पहल हो तभी जो भारतीय दलितों की जो दयनीय स्थिति है उस पर केवल सुधार आ पाएगा। तो ये सारी चीजें जो अंबेडकर जी का अपने व्यक्तिगत विश्वास था, ये विश्वास को हमको देखने मिलता है कि अंबेडकर जी अपने राइटिंग में, अपनी किताबों में जो लिखे हैं, वो किताबों में इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं। और ये कि इसके अलावा भी अंबेडकर जी का जो एक मानवीयता जो गुण था, वो जो महान गुण मानवीयता का महान गुण की भी हम लोगों को रूपरेखा देखने को मिलता है। और अंबेडकर जी हमेशा अपनी अपनी लेखन में, अपने व्यवहारों में जो बोलते हैं ह्यूमन डिग्निटी, मानव की जो एक इंटीग्रेटेड रिस्पेक्ट होता है या सम्मान होता है, वो सम्मान मानव जाति के सम्मान के प्रति वो हमेशा जोर देते रहे। और ये सारी चीजें जब हम अम्बेडकर के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि अम्बेडकर जी जो गौतम बुद्धा, कबीर, ज्योतिबा फुले और जॉन डिवे जो पाश्चात्य वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनके जो चिंताधाराओं से अम्बेडकर जी का बहुत अच्छी तरह से परिचय हुआ था। अम्बेडकर जी ज्यादातर जो गौतम बुद्धा की जो बुद्धदेव जो हम लोग बोलते हैं इंडिया में, भारत में हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्धा या बुद्धदेव या बुद्धा, तो वो गौतम बुद्धा की जो एक समाज की जो एक वास्तविक दृष्टिकोण रहा है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में, वो अम्बेडकर जी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। और इसीलिए ये कोई आश्चर्य के विषय नहीं है कि अम्बेडकर जी हिंदू समाज छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। तो ये देखते हैं कि जो अब गौतम बुद्ध का जो एक वास्तविक दुनिया की जो एक चिंताधारा था, उसमें वो अंबेडकर जी को समाज में दलितों की जो दयनीय स्थिति था उसमें किस तरह सुधार आए, उसके लिए गौतम बुद्ध का चिंताधारा बहुत ही उनको उत्साहित किया था, उनको प्रेरित भी किया था। तो उसमें हम देखते हैं तो जब अम्बेडकर जी भारतीय समाज की आलोचना करने लगे, तब उनको पता लगा कि
जो उच्च जातियों की लोगों में, उच्च जाति संपन्न लोगों में जिस तरह की जमीन की भरमार था, वो उसको अंबेडकर जी मानते थे कि समाज में जो कास्ट हायरार्की था तो उसके लिए उसको जिम्मेवार मानते थे। और अंबेडकर जी ये कहते थे कि जो समाज में जो असमानता था, जो इनइक्वालिटी था, ये और जिसमें हर तरह की, और जो दलितों की समाजों में जिस तरह की गरीबी था, वो गरीबी और ये जो सामाजिक असमानता के लिए वो जो जमींदारों के हाथ में और उच्च जाति भारतीयों के हाथ में जिस तरह की जमीन की भरमार था, उसको वो दोषी मानते थे। इसलिए अंबेडकर जी हमेशा भारतीय समाज में इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्शन रहा है, जब भारतीय समाज में हमेशा हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन शास्त्र में हमेशा समानता पे जोर दिया है, लेकिन देखा जाता है वास्तविक तौर पर वो समानता पे जोर देते हुए भी किसी तरह की नीति की ना प्रणयन होता था, ना किसी तरह की नीति की इम्प्लीमेंटेशन होता था। तो अंबेडकर जी इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्शन इंडियन सोसाइटी में देखे, उसमें अंबेडकर जी बोलने लगे कि अंबेडकर जी एक सवाल आप करने लगे कि कब तक हम लोग इस तरह की जो असमानता है, कि जो इनइक्वालिटी है, और इस किस तरह की कि कब तक हम ये दलितों को ये असमानता की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करें और उनकी जिंदगी में हम लोग समानता क्यों नहीं लाएं। और अंबेडकर जी इसके बारे में भी बड़ी खेद प्रकट किए थे कि जब तक हम लोग ये इनइक्वालिटी को हम लोग खत्म नहीं करेंगे और सोशल जस्टिस को नहीं लाएंगे, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरता जिसको बोलते हैं, नहीं लाएं, तब तक हमारी राजनीतिक सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, हमेशा खतरे में पड़ा रहा। आई थिंक ये जो खतरे की चीज है, जब हम लोग खतरे के बारे में बात करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि खतरे की जब घंटी बजने लगता है तो हम लोग जो एक भारतीय होने के नाते हम लोगों को एक भय लगने लगता है कि शायद समाज में टूट पड़ेगा, या जब समाज में टूट हो तो क्या उसकी ज्यादा तरह से टूट बढ़ जाएगा, और क्या जो सोशल लाइफ हम लोग मेंटेन करते हैं सोशल इंटीग्रेशन के तहत, शायद वो समाज में क्या हम लोग एक साथ होके नहीं चल पाएंगे। तो इसमें ये देखा जाता है कि जब अंबेडकर जी ये जो सामाजिक जो दलित समाजों में जिस तरह की असमानता आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, अंबेडकर जी उसके बारे में एक तरह से नया ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में वो पक्षधर थे। वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो हम बोलते हैं आर्थिक दिशा से जिस तरह की तरक्की भारत में होना चाहिए, उसमें वो चाहते थे कि वो आर्थिक नीति ऐसे बने जो आर्थिक नीति में हमारी इक्विटी और इक्वालिटी और ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे जोर दिया जाए। और जब हम अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान के बारे में जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके बारे में हम लोग गौर फरमाए कि जो अम्बेडकर जी की जो दर्शन शास्त्र रहा है, अम्बेडकर की जो चिंताधारा रहा है, अम्बेडकर जी की जो हमारी जो हम कहते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण रहा है, उसमें जब हम लोग उस पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये नहीं कि अम्बेडकर जी की जो चिंताधारा एक दार्शनिक स्तर पर रह जाता है, लेकिन अम्बेडकर जी का जिस तरह की चिंतन था, वो चिंतन आज भी आजादी की 75 साल के बाद भी हम लोगों को अम्बेडकर जी की जो चिंताधारा था उसकी रिलेवेंस हम लोगों को नजर आता है। आज जब हम भारतीय समाज के बारे में बात करते हैं, भारतीय समाज के बारे में हम जितना भी अपना छाती फाड़ कर, छाती पे दबदबा के हम लोग बोले कि भाई भारतीय समाज में ये सारी विकृतियां नहीं है, आज भी भारतीय समाज में हम लोग जाति प्रथा को मानने के लिए तैयार नहीं है। जाति प्रथा किसी किसी भारत के अंश में खत्म हो चुका है, लेकिन जबकि देखा जाता है कि भारतीयों में मुझे मिलाकर हम लोगों की चिंताधारा अभी भी किसी तरह की जाति प्रथा से प्रेरित होकर हम लोगों की जो व्यवहार जो हम समाज में दिखाते हैं वो समाज में प्रकट हो जाता है। लेकिन जो भी अम्बेडकर की जो दर्शन शास्त्र, अम्बेडकर जो चिंतन है, आज ये चिंतन की इसकी महत्वता इसीलिए है क्योंकि आज भारतीय समाज के बारे में जब हम बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं, उसमें देखा जाता है कि भारतीय समाज जो बोलते हैं नियो कॉलोनियल, नियो लिबरलिज्म के तहत जब गुजर रहा है, जो वैश्वीकरण के दौर में गुजर रहा है, ये वैश्वीकरण की इस तरह से भय सचमुच आदमी को डराता है कि भारतीय समाज में जबकि हमारी एक तरह की आर्थिक समानता नहीं आया है, सामाजिक समानता नहीं आया है, और ये वैश्वीकरण के दौर में भारतीय समाज में और ज्यादा ये जो असमानता की बढ़ने की खतरा है।
तो एनीवे तो ये जो इसलिए कि अम्बेडकर जी के बारे में आज ये बोलना सही होगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी करिकुलम में, हमारी राइटिंग में, हमारी पब्लिक स्पीचेस में जिस तरह की हम बच्चों से या लोगों से, बाकी बाकी समाज की भिन्न भिन्न लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो हम लोग उसके उनके चलते हुए अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा ध्यान दें और अम्बेडकर जी को केवल दलितों की मसीहा ना समझकर भारतीय समाज की मसीहा समझने में हम लोगों को कोई कठिनाई होना नहीं चाहिए। तो ये रहा अम्बेडकर जी का अपनी व्यक्तिगत चिंतन। हम लोग जब भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि अम्बेडकर जी का जो चिंतन रहा है, समाज में जो क्रूरता था, जो आर्थिक असमानता था, जो सामाजिक असमानता का था, जो भारतीय समाज को एकजुट रहने में अक्षम बनाता था, उस तरह उनकी जो व्यक्तिगत चिंतन था वो जबकि भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, जब भारतीय संविधान की जब रचना हो रहा था, उसमें अम्बेडकर जी की योगदान बहुत ही महान रहा है। और इसमें हम देखेंगे जब हम लोग अम्बेडकर जी के बारे में जब बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट जो संवैधानिक जो विवाद है, हम लोग जब उसपे जो बात करें तो हम लोगों को ये पता चलता है कि अम्बेडकर जी की जो आइडियाज थे, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी संक्षेप में चर्चा किए हैं, वो सारे आइडियाज को अम्बेडकर जी एक सुदृढ़, एक शक्तिशाली और एक तो बोलते हैं ना कि भारतीय समाज को कैसे बनाया जाए, उसके बारे में अम्बेडकर जी की हमेशा कोशिश रहा है। तो ये देखा जाता है जब आई थिंक हम लोग अम्बेडकर जी को जब आई थिंक लॉ में जब हम लोग संविधान के बारे में जब बात करते हैं और अम्बेडकर जी को जब हम संविधान के साथ जोड़ना चाहते हैं, तभी हम लोग देखने को मिलता है कि अम्बेडकर जी की चर्चा हम लोग ज्यादातर सेक्शन 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में जिस तरह की संरक्षण की रचना किया गया है, जिसके प्रावधान किया गया, उसके साथ हम लोग अम्बेडकर को जोड़ते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि अम्बेडकर जी के जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 14 में दलितों की जो शिक्षा की तौर पर जिस तरह की उनकी शिक्षा पे जोर दिया जाए, उसके बारे में अम्बेडकर जी अपने ध्यान दिए हैं। और आर्टिकल 15 में दलितों की जो रोजगार है, वो रोजगार के बारे में अम्बेडकर जी इंडियन भारतीय संविधान में उसके प्रावधान किए हुए हैं। लेकिन ये सही है कि ये जो प्रावधानों में से चलिए संविधान बन गया, प्रावधान बन गया, उसके लिए नीतियां भी बन गई हैं, लेकिन अभी भी ये देखा जाता है कि ये जो जिस तरह की संरक्षण की बात हुआ था, उस संरक्षण की कोई सुफल देखने को नहीं मिला है। चाहे कुछ लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है आजकल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और सरकार की बाकी अंशों में भागीदारी बढ़ा है, लेकिन जिस तरह की दलित समाज जिस तरह की संघर्ष में संघर्ष को जूझते हैं, जिस तरह की असमानता में उनको आज भी जिंदगी निभाना पड़ता है, उस हिसाब से हमारी संविधान में प्रावधान, नीतियों के प्रावधान के तहत कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखने को मिलता है। और ये जो संविधान के जो प्रावधान था, चाहे हम लोग उच्च हिंदू जातियों से हम इसके बारे में बहुत ही समालोचना देखने को मिलता है, लेकिन इस बात की हमको ध्यान देना चाहिए कि जबकि दलित वर्गों में से कुछ दलित ऊपर उठे हैं, लेकिन हमको इस तरफ की ध्यान देना चाहिए कि सारे दलितों की तकदीरों में समाधान कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और जिन दलित वर्गों में जो बदलाव आया हुआ है, वो जिस तरह के बदलाव समाज में अपनी सरकार की नीतियों के तहत हुआ है, वो जिन दलित वर्गों की बेनिफिट हुआ है, उन दलितों को वो एक उच्च जाति में बदल दिया है, बल्कि उनको अपने दलित समाज में जो पिछड़े हुए भाई बहनों हैं उनकी तरफ ध्यान देने के लिए एकदम बहुत ही अक्षम बना दिया है। और उसके लिए हम लोग जितना भी चर्चा करें कि शायद वो संरक्षण के बारे में जब आज बात करते हैं, वो बहुत ही सारे लोग देखने को मिलता है, शिक्षित लोग ये बात की पक्षधर हैं कि संरक्षण की जो संवैधानिक संरक्षण की जो बात हुआ है उसकी खत्म कर दिया जाए, लोगों को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए मौका दिया जाए और शायद संरक्षण को एक छोटा सा एक वर्गीकरण के लिए संरक्षण को
बहुत सारे शिक्षित नागरिक मानते हैं। लेकिन ये बात हमको ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह की प्रावधान हुआ है वो प्रावधानों में कोई गलतियां तो नहीं है, लेकिन प्रावधानों की जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग अपनी तरह से एक आर्थिक समानता की दृष्टि से समाज की जिस तरह सुरक्षा हो, जिस तरह की सामाजिक समानता हो, सामाजिक न्याय सबके साथ हो, उसकी अनदेखी हुआ है। इसीलिए कि संरक्षण की एक तरह से कंटिन्यूएशन जरूरी हो पड़ा है। लेकिन बट इसके बारे में हम लोग ये ध्यान भी देना चाहिए कि अंबेडकर जी की जो व्यक्तिगत जो दर्शन शास्त्र था, व्यक्तिगत चिंतन था, जिस तरह की उनकी व्यवहारिक जिंदगी वो निभाए थे, किए थे, तो इस बात की भी वो अनदेखी नहीं किए थे कि बाकी समाज में बाकी वर्गों की जिस तरह की जन समुदाय होंगे उनकी अनदेखी हो। लेकिन हमारी हमारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये रहा है, हमारी दुर्भाग्य ये रहा है कि हम लोग कोई भी नीति जो सबके लिए बनता है उसको हम लोग सर्वोपरि ना देख हुए किसी एक वर्ग के साथ उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद वो नीति की एक तरह की खात्मा हो जाता है। संविधान में रूपरेखा तो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में, लेकिन जब अब समाज में जाते हैं तो हाँ, अभी भी हम देखते हैं कि जो दलित वर्ग है उनकी तरफ हम लोगों की व्यवहार में किसी तरह की बदलाव नहीं आया है। हम लोग अभी तक भी उनको उसी तरह से नीचे की दृष्टि में घृणापूर्ण चक्षु से दृष्टि से देखते हैं, और उनकी कहीं बदलाव हो जाए हम उनके पक्षधर नहीं होते हैं। आज भी देखा जाता है कि जब आप राजस्थान में देखेंगे, अपने राज्यों में, बिहार में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, जबकि कोई दलित युवक जब काबिल दलित युवक जब उच्च जातियों की चलते हुए जो प्रथा हमारे चला है कि घोड़ी में ब्याह करने जाता है, तो उसको सम्मान ना करते हुए हम लोग उसकी साथ बहुत ही बुरे व्यवहार करते हैं। ये पता चलता है कि संविधान में नीतियों में, अपनी लिखन में, अपने चिंतन में इस तरह की जो लोकाभिमुखी जो नीतियों की जो प्रावधान है हम लोग उसको अपनाएं। और हम लोग और तब तक सामाजिक न्याय नहीं आ पाएगा भारतीय समाज में संविधान के तहत भी, जब तक हम उसकी तरफ अपनी अच्छी नजरिया नहीं लाएंगे। और इसमें ये देखा जाता है कि जब आप सामाजिक न्याय के बारे में ज्यादा हम लोग सोचते हैं, हम लोग देखते हैं कि आज के जमाने में ये जरूरी हो चुका है कि संविधान में प्रावधान के बावजूद भी हम लोग अपने स्तर पर, अपने समाज में, अपने विद्यालयों में, अपनी विश्वविद्यालय में, अपने जो हम लोग बोलते हैं कि सोशल मीटिंग्स में किस तरह की सबके साथ जो न्याय हो उसके बारे में हम लोग इस नीतियों के साथ भी हम लोग कुछ कोशिश करें। और ये कोशिशें कैसे आएंगी? वो कोशिश तभी आएंगे जब हम लोग तो उसके बारे में अपने लेखन में, अपने चिंतन में, अपनी व्यवहार में उसके बदलाव लाएं। और जब ये कहना आसान है कि भाई चिंतन में बदलाव आ जाए, लेखन में आ जाए, पठन में आ जाए, पर ये बदलाव हमारी समाज की जो स्थितियां हैं उस स्थितियों को देखते हुए हम में अपने आप में ये बदलाव आ जाना चाहिए। आज की समाज में, आज के समय में ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई विदेशी ताकतों के पास जाएं या विदेशी किताबें पढ़ें या विदेशी चिंताधारा को अपनाएं, तभी हमारी समाज में सुधार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस तरह चिंताधारा से परहेज होकर हम लोग अपने आप में जो संवैधानिक दृष्टिकोण में, जो संविधान में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग अपनी निजी जिंदगी में उसको हमको उतारना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है कि भारतीय समाज में हम ये देखने को मिलता है, जब भारतीय समाज में एक तरह से एक नेकलेस की तरह भारतीय समाज होता है, और आज जो भारतीय समाज में जब हम टूटे फूटे तरह भारतीय समाज की कल्पना करते हैं या उसकी विवेचना करते हैं, तो ये इसलिए हम लोग इसको टूटे फूटे भारतीय समाज बोलते हैं, इसलिए कि हम लोग एक साथ रहने के लिए कोई किसी तरह की पहल नहीं करते हैं। हम लोग जरूर ये रहते हैं कि अपने जो जात की
जो बिरादरी में हम लोग रहते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग खाना खाते हैं, उन्हीं के साथ जिंदगी जीते हैं, उन्हीं के साथ हमारी सामाजिक व्यवहारिक जो बोलते हैं रिलेशनशिप चलता आया है। लेकिन वो हमारी समाज में दूसरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग कभी कोशिश नहीं करते हैं। ये विडंबना रहा कि भारतीय समाज में जो हमारी जो शादी ब्याह की जो प्रथा है, वो आजकल भी वो समाज में केवल जो जातियों के अंदर रहा है, और गैर जातियों से किसी का कोई संबंध हो जाए, किसी तरह की विवाह करने के लिए भी हम लोग किसी तरह से हम लोग अपने उत्कंठा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो ये जो चिंताधारा है, ये बहुत ही कुत्सित चिंताधारा है, क्योंकि हम लोग दूसरों को अपने जिंदगी में, जबकि समाज में हम एक ही समाज में रहते हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरह से उपाय करते हैं कि वो भागीदारी ना बढ़े। लेकिन जब तक भागीदारी नहीं बढ़ेगा, जब तक इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम आदमियों को, औरतों को अपनी तरह नहीं देखेंगे, अपनी अच्छी नजर से उनको नहीं देखेंगे, उनको अपनी तरह, अपनों की तरह नहीं अपनाएंगे, तब तक भारतीय समाज में इस तरह की जो 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 बोलते हैं, what they call that, this kind of distortions will continue to ramage Indian society and will not help in building up the Indian society in a much more solid, integrated way. आज जो हम लोग जो सोशल यूनिटी के बारे में बात करते हैं, सोशल यूनिटी जो सामाजिक एकता की एक तरह से उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भारतीय समाज में जो हम देखते हैं कि आज जो वैश्वीकरण के तहत भारतीय समाज टूटने के आधार पे है, क्योंकि जबकि हमारी इनइक्वालिटी, जो आर्थिक असमानता पहले था, वो आजकल बढ़ने लगा है। हम आजकल आप शहरों में जाएंगे या गांव में जाइए, हमको आर्थिक असमानता नजर आता है, क्योंकि लोगों की जो आशा है उसको हम लोग जो वैश्वीकरण है, लोगों के बोलते चलते हुए भी ये वैश्वीकरण किसी तरह से लोगों को मजबूती नहीं देता है, इसलिए कि लोग डरे हुए होते हैं। और जब लोगों में भय की संख्या बढ़ा है, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि लोग उसके बारे में ना कुछ कर पाते, और अब हम बिना कुछ किए हुए भी, क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं बिना कुछ किए हुए हम लोग वो पाश्चात्यकरण की जिसको हम लोग आधुनिकीकरण समझते थे, उस आधुनिकीकरण के दौर पे हम लोग अंदर घसीटे जाते हैं, और घसीटे जाने पर हम लोगों की एक शोषण की जो दायरा था, उस शोषण की दायरा बढ़ जाता है। आज जब हम आर्थिक शोषण के बारे में या सामाजिक शोषण के बारे में बात करते हैं, आज वो सामाजिक और आर्थिक शोषण में दो दो हर तरह की जो जातियां हैं, इंक्लूडिंग दी scheduled caste and the scheduled tribes, we find all the upper caste people, the so-called upper caste, are also getting sucked into that kind of exploitation process, which is making the Indian society more prone to social disintegration than what we know is सामाजिक एकता. I think ये सामाजिक एकता तभी समाज में बढ़ पाएगा जब हम एक दूसरे के साथ तालमेल से, बोलचाल से हम लोग एक तरह से जिंदगी निभाने के लिए हम लोग we will be promising ourselves that we'll be living together with everyone else in the Indian society, irrespective of the differences, the divergences that are in Indian society, and we will continue to live as one. ये सामाजिक एकता ही है जो आर्थिक असमानता जो आज के वैश्वीकरण के दौर पर बढ़ रहा है, ये केवल ये हमारे भारतीय समाज को एकजुट रखने में बहुत ही मदद कर पाएगा। और ये जो आप जब सामाजिक एकता के बारे में बात करते हैं, ये सामाजिक एकता भारतीय संविधान में किस तरह उल्लेख नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी उल्लेख नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं बनता है, क्योंकि वो सामाजिक एकता जो है वो हमारी इट्स एन इनहेरेंट प्रोसेस दैट हम लोग जब समाज में जन्म लेते हैं तो ये हमारी एक अंग बन जाता है, तो इसको अंगीकार करने में किसी संविधान की जरूरत नहीं पड़ता है। सामाजिक एकता उसी में आएगा जब हम कानून की रक्षा करें, और कानून जो संविधान की आर्टिकल्स के तहत बनता है भारतीय संसदों में या विधानसभा में, उसकी हम लोग सम्मान करें, और जिस तरह की कानून बनते हैं वो कानून की बिना बुरी तरह समालोचना ना किए हुए जो उसमें जो अच्छाई है उसको हम लोग अपने जिंदगी में उतारें, तभी भारतीय समाज की एक सामाजिक एकता बन सकता है। सामाजिक एकता के साथ हम लोग जब वैश्वीकरण को जोड़ेंगे और विश्व भर में जिस तरह की आर्थिक मंदी की स्थिति है हम वो देखेंगे, वो सामाजिक जो सोशल डिसयूनिटी है
ये आज की जो वैश्वीकरण दौर पे भिन्न भिन्न समाजों में जिस तरह की असमानता बढ़ रहा है उसके लिए जिम्मेवार है, इसलिए कि लोगों की जो जो इनकम है उसमें कमी आता है। आप देखेंगे कि आज के वैश्वीकरण दौर पे जब सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो रहा है और उसमें आप ये देखेंगे कि केवल सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी नहीं आया है, उसमें जो लोगों की जो जो आमदनी जिसको हम कहते हैं इनकम, जो गवर्नमेंट जो सैलरी मिलता है वो सैलरी में भी कमी आया है। और जिस तरह की सैलरी में कमी आया है वो समाज को एक बहुत ही बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हर वर्गों में हम लोग देख रहे हैं आर्थिक असमानता बढ़ा है। और ये आर्थिक असमानता को हम लोग उस पे एक पूर्ण छेद लगा पाएंगे जबकि हम सामाजिक एकता और जो संविधानिक जो मूल्यों हैं उनके सम्मान करें, और जो राजनीतिकरण हमारे समाज में हो रहा है उससे हम अपने आप को दूर रखें। राजनीति में भाग लेना राजनीतिकरण नहीं कहा जाता है। राजनीतिकरण को एक नेगेटिव तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें आदमी अपना निचलापन, जो अपना अपना जो बोलते हैं, जिसको आजकल लोग कहते हैं स्वामित्व, जो जिसपे हमारी अपना जोर होना चाहिए, उसको हम लोग उससे परहेज होकर हम लोग दूसरों की नीतियों को अपनाते हैं और दूसरों की बोलचाल में ज्यादा प्रभावित होकर हम एक दूसरे को ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं और उसमें सामाजिक एकता टूट जाता है। और सामाजिक एकता जब रहेगा तभी अच्छी तरह से जो 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 नीतियों में हम लोग आजकल खामियाजा देख भुगतना पड़ता है हम लोगों को, उससे हम लोग उभर पाएंगे और अच्छी नीतियों की प्रणयन कर पाएंगे। जबकि भारत जो श्रीलंका की जो दयनीय स्थिति है उस दयनीय स्थिति में ना घुसकर हम लोग एक सुदृढ़ आर्थिक राष्ट्र होकर हम लोग उभर पाएंगे। चाहे जितना भी सरकार बोले कि आई थिंक आप जब भारतीय अर्थनीति के बारे में बात करेंगे, अंबेडकर जी का नाम सर्वोपरि होता है, क्योंकि आप देखे होंगे अंबेडकर जी जब लंदन में अपने पीएचडी कर रहे थे, वो फॉलिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी पे उनकी थीसिस था। तो उसमें आप वो देखिए कि उस समय की जो दादा भाई नारोजी जो कहते थे कि जो 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 कॉलोनियलिज्म था, तो उसमें उसमें हमारी इंडिया से सारे जो धन था वो चोरी हो जाता था। वो कहते कि नारोजी का वो फेमस थियोरी है कि द ड्रेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि जितने सारे जिस तरह की ब्रिटिश साम्राज्यवादों की जो अफसर यहाँ रहते थे, जिस तरह की नीतियों की वो पालन करते थे, उसमें भारतीय समाज से हमारी धन ज्यादा चोरी होता था, अर्थनीति को ज्यादा क्षति पहुंचाता था और उससे वो विदेशी ताकतों को ज्यादा फायदा मिलता था। आज की जमा वैश्वीकरण में भी वही चीजें चली है और अंबेडकर जी जिस तरह की अर्थनीति की समालोचक रहे हैं, वो समालोचना आज भी हम लोगों को किसी एक तरह से बल पहुंचाता है कि हम ये वैश्वीकरण को पहचाने, हम संविधान में जो प्रावधान है उसकी सही तरह से एक समय पूर्वक उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और सब एक दूसरे की जो जो आर्थिक उन्नति है उसमें अपनी भागीदारी दें और भारतीय समाज को एक अच्छी तरह से गढ़ने में अपनी योगदान दें। आई थिंक आप और टाइम है, और कुछ और बोले? हाँ सर, आपके पास अभी टाइम है सर, अभी अपने पास और 30 मिनट्स है। कोई बात नहीं। तो उसमें ये और थोड़ा सा हम लोग और आई थिंक जब हम अम्बेडकर के बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए आज आए हैं, तो इसमें ये देखेंगे कि अम्बेडकर जी और गांधीयों के अब तक अम्बेडकर जी और गांधीयों के मेल में जो एक जो यूनिटी आया था उसको हम लोग बोलते हैं पुना स्वराज पैक्ट। तो उस पुना स्वराज पैक्ट में जब गांधी जी जेल में थे, तब गांधी जी ये जो संवैधानिक संरक्षण के बारे में सबसे उच्च पक्षधर थे, जबकि अम्बेडकर जी उसमें नहीं थे। अम्बेडकर जी के चलते हुए गांधी जी ने गांधी जी तभी बापू एक राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय तरह की एक बहुत ही पहचाना हुआ फिगर बन गए थे। तो वो गांधी जी और गांधी बाद की जो समर्थक थे उनके चलते हुए एक रिजर्व थे। अम्बेडकर जी चाहते थे कि पूरा कास्ट सिस्टम की उत्पीड़न, कास्ट सिस्टम की एलिमिनेशन हो, तब समाज में शायद तेजी से दलितों की विकास हो पाए। लेकिन ये देखने को मिला जब, और आप आज जब संरक्षण के बारे में बात करते हैं, हम लोग अम्बेडकर जी के कम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अम्बेडकर जी के चलते हुए शायद संरक्षण, जो संविधान संरक्षण का रूप आया है और उसमें शायद बाकी जातियों के जो लोग हैं उनको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है।
और इसीलिए हम लोग अम्बेडकर जी की शायद उच्च जातियों के लोगों में हम लोग देखते हैं अम्बेडकर जी के बारे में हम लोग उल्लेख नहीं करते। लेकिन हम इस बात की समझना चाहिए कि संविधान में जो 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 प्रावधान किया गया था उसमें सारे लोगों की सहमति तो था, लेकिन अम्बेडकर जी भी राजी हो गए थे, क्योंकि गांधी जी किसी के पास वो ताकत नहीं था कि हम लोग महात्मा गांधी के खिलाफ कोई भी चिंताधारा को हम लोग सामने रखे और उसको हम लोग उसको एक व्यवहारिक तौर पे हम उसको एक नीतियों के तहत उतार सके। इसलिए कि संरक्षण की जो बात था उसमें हमको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि संरक्षण पर से कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन पर से इज नॉट बैड, बिकॉज इन एनी केस आप देखेंगे समाज में जिस तरह की दुर्बल शक्तियां रह जाते हैं समाज की विकास के तौर पर उनकी 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 तरफ ध्यान देना, उनकी स्थिति में सुधार लाना हम लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है। उसके चलते हुए संविधान में ये संरक्षण की सहमति हुआ था और उसको हम लोग संविधान में उल्लेख किए हुए हैं। और अम्बेडकर जी का जो चिंताधारा है, अम्बेडकर जी का चिंताधारा संरक्षण से बहुत ही उच्च कोटि है। अम्बेडकर जी समाज में जो हम लोग जयप्रकाश नारायण के जी का एक जो स्लोगन था टोटल रिवॉल्यूशन, वो समाज में संपूर्ण क्रांति की जो 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 भावना था वो अम्बेडकर जी के मन में सर्वोपरि था। अम्बेडकर जी चाहते थे कि समाज में सबके शायद न्याय हो, बल्कि दलितों के साथ नहीं बाकी जो वर्ग रहते हैं उनके साथ भी न्याय हो, समाज में एक तरह की एक क्रांति आए जिसमें सबकी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनकी उनकी उन्नति हो और बाकी लोगों की भी उन्नति हो। इस तरह की जो चिंताधारा है आई थिंक ये टोटली यूनिक है, क्योंकि इंडियन समाज के हम जितने भी हम लोग भारतीय हैं जरूर हम अपने समाज की समालोचना जरूर करना चाहिए जहां तक हमारी खामियां हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए, ये भी जानना चाहिए कि जो भारतीय समाज में जो संपूर्ण क्रांति की जो भावना है वो अम्बेडकर जी उसको भारतीय समाज में पहले के नाते उसको उठाए थे और ये दुर्भावना रहा है कि हम लोग उसको आगे नहीं ले पाए, जबकि संविधान में जरूर उल्लेख कर दिया लेकिन उसको एक सामाजिक सोशल मूवमेंट में हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अम्बेडकर जी को हम लोग हिंदुस्तान में शायद उनको संविधान संरक्षण की पक्षधर मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी सर्वोपरि एक अर्थनीतिज्ञ इकोनॉमिस्ट थे, जबकि वो इकोनॉमी को मानते थे कि इकोनॉमी में जब सुधार आ जाएगा तो समाज में सुधार जरूर आ जाएगा। आई थिंक इसमें अम्बेडकर जी के जो चिंताधारा है उसमें हम लोग का मार्क्सियन जो लेफ्टिस्ट चिंताधारा जो था उसकी भी हम लोग उसकी छाया देखते हैं कि इकोनॉमी जब चेंज हो जाएगा, जैसे मार्क्स कहते थे कि सोसाइटी दैट व्हेन देयर आर चेंजेस इन द इकोनॉमी देयर कैन बी चेंजेस इन द सोसाइटी एज वेल। इसीलिए मार्क्स की जो चिंताधारा हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, उस तरह की इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की जो जो रूपरेखा हम लोग अम्बेडकर जी के दर्शन में भी हम लोगों को देखने मिलता है। तो उसमें जब जब हम अम्बेडकर को अर्थनीतिज्ञ के तौर पर हम देखेंगे, उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम उनकी जो पर्सनालिटी का एनालाइज करें तब हमको ये जरूर पता लगता है कि शायद उनकी जो इकोनॉमिक आइडियाज था वो इकोनॉमिक आइडियाज उस समय, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सारे जो हमारी भारतीय भाई बहनें थे वो इतनी व्यस्त थे कि वो केवल आजादी के बारे में अपनी जो अटेंशन है, अपनी जो नजर है उसको इकट्ठा किए हुए थे और समाज में जो आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर जिस तरह के बदलाव आना चाहिए उस बदलाव की तरफ उस समय ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इसीलिए अम्बेडकर जी के जो इकोनॉमिक आइडियाज है वो इकोनॉमिक आइडियाज को हम लोग आज ना ही जानते हैं, ना ही उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, ना ही उसके मूल्य समझते हैं। लेकिन मूल्य ना समझ पर हम लोगों को ये माफी नहीं है कि हम लोग देश को हम लोग उसके बारे में चिंता ना करें। आज जो दौर पर जब आप इकोनॉमिक आइडियाज अम्बेडकर जी का देखते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है कि अम्बेडकर जी को हम लोग गांधी जी के बराबर दर्जा देकर और उनके जो मूल्यों उनकी जो संवैधानिक मूल्यों है या आर्थिक नजरिया है उसको हम लोग अपनाना चाहिए। क्योंकि आप भी देखेंगे कि जबकि महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं, हिंद स्वराज की बात करते हैं, जब गांधी जी कुटीर शिल्प के बारे में जोर देते थे तो गांधी जी
इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में भी थे। ये नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी सोचते थे कि जो भारतीय समाज की जो नई अर्थनीति बनेगा स्वतंत्रता के बाद, वो शायद, क्योंकि गांव में लोग बसते थे, गांव में कुटीर शिल्पों की जो एक तरह सा समुदाय, जन समुदाय लगे हुए थे, उनकी आर्थिक दृष्टि से उनकी रोजगार बढ़े, उनकी परिवारों की आर्थिक उन्नति, उस पर ध्यान देते थे। अम्बेडकर जी भी, जो अर्थनीति के बारे में हम लोग बात करते हैं, अम्बेडकर जी भी भारतीय समाज में उस तरह के अर्थ ढांचा को, अर्थनीति के ढांचा अपनाना चाहते थे जिसमें कि सब वर्गों के विकास हो। और ये इसलिए कि अर्थनीति पे ध्यान, आर्थिक तेजी पे ध्यान देते थे, क्योंकि वो सोचते कि जब आर्थिक दृष्टि से एक समानता समाज में आ जाएगा, उसमें उस समाज में इस तरह की जो विकृतियां हैं, जो जिस तरह की जो जाति प्रथा या और तरह जो कुप्रथा हमारे समाज में चला हुआ है, उसकी खत्म हो जाएगा। और हम लोग ये भी देखें कि जब आदमियों को बीच एक आर्थिक तरक्की आता है, उसमें सामाजिक जो विकृतियां हैं, उनमें से उनको अपनाने में जरूर कमी आता है। तो ये बात की हम लोग को एक तात्पर्य देना चाहिए कि जब हम लोग गांधी जी की बात करते हैं, तब हम लोग उसको देखना चाहिए कि अम्बेडकर जी का आर्थिक नीति और गांधी जी की जो व्यक्ति केंद्रित स्वतंत्रता की जो नीतियां थे, वो नीतियों की जब हम लोग जोड़ पाएंगे, तब भारतीय समाज में एक तरह की चेंजेस आना संभव है। और इस समय आपको आज लगता है कि आज जो जिस तरह की नीतियां बनती है पार्लियामेंट में, चाहे अम्बेडकर जी को हम वर्तमान की सरकार अम्बेडकर जी का सबसे उच्च, सबसे टॉलेस्ट स्टेचू बना रहे हैं, उनके लिए इंटरनेशनल सेंटर बनाए हैं, और उनके लिए बहुत सारे और कदम उठाए। लेकिन वो कदमों का मानना चाहिए कि कदमों की कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सब राजनीति से प्रेरित है, जबकि समाज की जो आवश्यकता है उस हिसाब से ये नीतियां नहीं बनते। और हम लोग और हम लोग ये भी देखा जाता है कि अम्बेडकर को हम जो हम लोग बोलते हैं उच्च हिंदू जाति हम लोग हैं, उनको शायद अम्बेडकर जी को हम गैर हिंदू करके मानते हैं। ये सच है कि अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे, लेकिन अम्बेडकर जी कभी हिंदू धर्म के प्रति अपना घृणा प्रकट नहीं किए थे। और हमको ये समझना चाहिए कि अम्बेडकर जी को बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का महान प्रथम कारण था कि हिंदू समाज में उनकी सम्मान नहीं होता था। उनको एक पिछड़े जाति, एक दलित की तहत उनको देखा जाता था। और जब हम देखते हैं कि जिन लोग हिंदू समाज छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर गैर हिंदू धर्म को अपना है, उसके लिए हम अपने धर्म की जो व्यवहार है उसको दायी मानना चाहिए। इसके लिए लोग अपने हिंदू धर्म छोड़कर बाकी गैर हिंदू धर्मों को अपनाए हैं। और अम्बेडकर जी के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि जब इनको हिंदुओं के साथ रहकर भी उनको वो सम्मान नहीं मिला, उनको गैर हिंदू धर्म जो बौद्ध धर्म था उसमें दीक्षित होने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। और अब ये देखा गया कि अम्बेडकर जी के उस समय इतनी सारे फॉलोअर्स थे कि अम्बेडकर जी लाखों फॉलोअर के साथ वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, इसलिए कि वो हिंदू धर्म को एक हिंदुओं को एक शिक्षा देना चाहते थे कि जब तक आप अपने धर्म की जो ऑर्थोडॉक्सी के बारे में बात किए, जो मराठिया चिंताधारा जो हिंदू धर्म में है, जो चला आ रहा है, जिसको हम लोग शायद कुछ मामले में सनातन धर्म के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो सनातन से चला आ रहा है। ये सनातन धर्म और सनातन से जो चला आ रहा है, उसमें हम लोग फर्क देखना चाहिए। जो सनातन के हिसाब से हम देखते हैं, वो नीतियां लोगों को अपने हिंदू धर्म छोड़कर गैर धर्मों को अपनाने में मजबूर करता है। और अभी तक भी आप जब देखेंगे अम्बेडकर जी जब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, अभी तक भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्मों में जो ऑर्थोडॉक्सी ये जो सनातन चिंताधारा जिसको हम कहते हैं, वो सनातन चिंताधारा में बदलाव लाने में हम लोगों में बहुत ही परहेज है। हम लोग अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, उसमें जो कुरीतियां हैं उसमें बदलाव लाने में हम लोग कभी भी कोई भी पहल नहीं करते हैं।
पहल ना करते हुए ये जो समाज में जो 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 दुष्पेषित जो शोषित जो वर्ग है उनको बहुत ही दुख पहुंचाता है, इसलिए कि उन लोग अपने जिंदगी में स्ट्रगल के तहत वो बहुत सारे गैर हिंदुओं शक्तियों को अपना लेते हैं। और ये चक्कर है कि हम इस बात की इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम अंबेडकर को ना ही गैर हिंदू समझे, ना ही हिंदू धर्म के खिलाफ समझे, ना ही जो बोलते हैं ना जो जनजातियों की नेता समझे। हम अंबेडकर जी को एक भारतीय उच्च कोटि सामाजिक वैप्लविक नेता के हिसाब से हम लोग उनको दर्जा दे, उनकी जो चिंताधारा है वो चिंताधारा को हम लोग अपनाएं और वो चिंताधारा को हम लोग गांधी वर्सेस द रेस्ट, गांधी नीति के खिलाफ या गांधी जी के खिलाफ की जो नीतियां है, खिलाफ की उनकी जो जो तर्क है उसको हम ना माने और अंबेडकर जी को हम लोग एक तरह से सम्मान करें जो उनको नीतियों के तहत, उनकी ज्ञान के तहत, उनकी संघर्ष के तहत वो डिजर्व करते हैं। और आई थिंक थोड़ा बहुत और आप अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे तो अम्बेडकर जी का आप देखेंगे अम्बेडकर जी मार्क्स की तरह कभी किसी बदलाव की विपक्ष नहीं थे। आज भी हम लोग अम्बेडकर की वो याद करते जब हम जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं या उसके बारे में शोध करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जो जिस तरह की नीतियों की हम लोग अवमानना किए हुए हैं, जिन नीतियों की हम लोग पालन नहीं किए, उसमें समाज में ना केवल जनजाति के जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसको पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। क्योंकि समाज में जब हम सामाजिक बात है, समाज में हर एक वर्ग की एकजुटता समाज को एकजुट रहने में मदद करता है। समाज को जितने कुरीतियां हैं उसको उसको उसमें बदलाव लाने के लिए ताकत देता है और समाज में अच्छी तरह की नीतियों की प्रणयन हो, नीतियों की परिकल्पना हो और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके बारे में भी जोर मिलता है। और जब सामाजिक एकता जब आ जाएगा उसमें हमारी राजनीति के स्तर पर जिस तरह की एकजुटता नहीं है उस तरह की एकजुटता बढ़ेगा, उसमें बदलाव आएगा, उसमें सब वर्गों के प्रति आर्थिक सामाजिक तौर पर जिस तरह के बदलाव लाना है उस तरह नीतियां बनेंगे और हमको उस तरह के सुफल फल मिलेंगे। आजकल अभी आप ये जानकर ताज्जुब होगा कि इतने सालों की संरक्षण बाद भी हम लोग जब दलितों के बारे में चर्चा करते हैं, ना कि दलित की जो महिला है और उनकी जो बाकी दुर्बल समुदाय है उनको उच्च जातियों से जिस तरह की हिंसक आचरण की सामना करना पड़ता है, वो उससे ये देखा जाता है कि महिलाओं को छोड़कर भी जो पुरुष वर्ग है उनके तरफ भी एक तरह से हम लोगों का वो पुराने रवैया में कोई बदलाव नहीं आया है। हम लोग उनको अपने समाज से हटकर दूसरे समाज की पक्षधर मानते हैं और उनकी तरफ जब हमारी नजरों में बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक भारतीय संविधान तो अपने संविधान के स्तर पर बना रहेगा, लेकिन समाज में बदलाव और कुरीतियों की जो खात्मा में किसी तरह की ताकत नहीं मिलता है। और ये सामाजिक न्याय के बारे में जो आप देखेंगे जो अम्बेडकर जी के बाद भी जिस तरह की सामाजिक मूवमेंट हमारे भारतीय समाज में हुआ है, जिसमें हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी के भी हम लोग जिक्र करेंगे, जो भी जो सोशल फोर्सेस थे, ये जो साम्यवाद की जो पक्षधर थे, उनके जो संघर्ष जो भारतीय समाज की कुरीतियों के खिलाफ देखने को मिला है, ये भी ज्यादातर अंबेडकर जी के चिंतन से बहुत ही अच्छी तरह प्रेरित हुए हैं। और संपूर्ण क्रांति के बारे में हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद वो साम्यवादी वो सोशलिस्ट फोर्सेस थे, वो शायद कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन वो इसलिए कैपिटलिज्म के खिलाफ राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण लड़ने में आगे आए थे इसलिए कि उनमें ये पूरा विश्वास था कि जो पाश्चात्य समाज की जो नीतियां को हम अपनाते हैं वो नीतियों से हमारी समाज में
क्रूरता बढ़ता है, समाज में आर्थिक असमानता आया है, और समाज में जो हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी उनको भी उनके कार्यपालन में भी एक तरह से बदलाव आ गया है, क्योंकि सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं सबके विकास, सबके न्याय से दूर हटकर वो एक वर्गों के न्याय में काम करने लगे हैं। और ये सही है कि आज की जो कैपिटलिज्म की जो दौर है, जो न्यू कॉलोनियलिज्म जिसको हम कहते हैं या न्यू लिबरलिज्म आप कहते हैं, उसके तहत संस्थाओं की जो जोर पकड़ था पहले समाज के ऊपर, उसमें ढीलापन हुआ है। समाज में ना जो समाज में जो लोग बसे हुए ना उनको जोड़ने में कामगर हुआ है, ना समाज में अपने संस्थाओं की शक्ति में किसी तरह से एक्सपेंशन हुआ है। समाज की जो बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशन सारे टूटने में है। आज की समाज में जब आप समाज को गौर तरह से आप ध्यान देंगे, उसमें जिस तरह की विकृतियां हम पाश्चात्य समाज में देखते थे, उस तरह विकृतियां अपने समाज में भी हम लोगों को देखने मिलता है। और ये भी आप देखेंगे कि हम लोग इतने पाश्चात्य जो कैपिटलिज्म के तहत जो हम लोग इस तरह की एक जो विलास मय हो गए हैं, जो विलास भरा जिंदगी निभाने में आप विश्वास रखते हैं, उसमें समाज में आर्थिक असमानता के साथ हम लोग और भी किसी तरह की विषमता पैदा करते हैं। वो विषमता जो है वो हमारी समाज, हमारी परिवार और हमारी जो व्यक्तियों की जिंदगी में उसका कुप्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो पाश्चात्यकरण के जो हम लोग जो समालोचना कर रहे हैं, इसके लिए ये देखा जाता है कि जो लोगों में जो जिस तरह की जो एक आर्थिक स्वतंत्रता की खोज में उनकी पहल होना चाहिए, वो आर्थिक स्वतंत्रता खत्म होने लगा है। और ज्यादा से ज्यादा लोग एक तरह से जो बोलते हैं ना कि एक इंडिपेंडेंस बढ़ रहा है। आप देखेंगे जो आज का डेवलपमेंट इंडिसेस बताता है कि उसी देश को हम लोग डेवलप्ड तभी मानेंगे जब उनकी मोर देन 25 to 30% लोग पब्लिक लोन लेते हुए अपना डेली का जिंदगी जीते होंगे। पहले आप देखेंगे कि भारतीय समाज में इस तरह की जो ऋण का संख्या, ऋणी जो आर्थिक दृष्टि से जो लोन के हिसाब से इतना संख्या नहीं था, आज संख्या बढ़ने लगा है। और ये संख्या इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग अपने भारतीय दर्शन से परहेज होकर हम लोग पाश्चात्य दर्शन को अपनाते हुए एक तरह से लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते हैं, जो कि केवल पब्लिक डेट से संभव होता है। आज का किसी भी घर में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि सबके घर में जिस तरह की आप देखेंगे गाड़ियां हो, बाइक हो या टीवी हो या और बड़े लग्जरियस कमोडिटीज हो, ये सारे they are now being bought on buy now pay later scheme, where the individuals are being asked to take loans from the bank, and the banks are happy to convert their purchase amount into loans, into EMI, and in the process families are now being sucked into this kind of a quagmire of indebtedness, where they are not only losing economic independence, they are also becoming more and more indebted to external forces which are certainly exploitative in nature. कोई भी ताकत जो हम लोग अपनी शक्तियों अपनी जो शरीर के बाहर देखते हैं, वो ताकतें आज देखा जाता है कि ये सभी शोषण की माध्यम है, ना कि आदमी को एक तरह से व्यक्तियों की स्वतंत्रता बढ़ाने में किसी तरह से कामगार साबित हुए हैं। तो ये सब जो जिसके बारे में हम समाज के बारे में बात करते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि समाज में जिस तरह की चिंतन बढ़ना चाहिए, जिस तरह की आर्थिक दृष्टि से हमारी पहल होना चाहिए, ये पहलों सब नहीं हो पाया है, क्योंकि हम लोग जो अपने भारतीय दर्शन की जो हम लोग कहते हैं कि दो मेन इंपॉर्टेंट फिगर जो स्वतंत्र संग्राम के तहत देखने को मिला, गांधी एंड अम्बेडकर, हम दोनों से दूर रहे हैं। ये नहीं कि हम अम्बेडकर से दूर रहे, गांधी को अपना लिए। आई थिंक हम लोगों को सब याद है जब गांधी जी की जो भी चिंताधारा था, आज भी आपको गांधी जी के एक तो चक्कर है कि हम लोग गांधी जी को आजकल याद ही नहीं करते हैं। चाहे भारत सरकार ने
याद किए हो, मोदी जी जब सरकार प्रधानमंत्री बने तब आप देखेंगे 75 years of 100th century of Gandhi's return from South Africa, 100 years of 100th year of Gandhi's डेथ एनिवर्सरी इस साल भारत मना रहा है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को बहुत हम लोगों में से बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है, क्योंकि हम लोग ना ही अम्बेडकर को दूर रखे, हम लोग गांधी जी को भी दूर रखे हुए हैं, क्योंकि गांधी जी के बारे में हम लोग क्यों रुचि नहीं आता है, क्योंकि उसमें पाश्चात्य सभ्यता जो है, पाश्चात्य संस्कृति जो है, उसका जो जोर है वो हम लोगों को एक तरह से मतवाला कर दिया है, कि हम लोग सोचते हैं कि जो ही विदेशों से आए वही शायद अमृत है, और जो अंदर से जो हम लोगों को मिले या हम लोगों को ढूंढने पर मिलता है वो शायद किसी काम का नहीं है। तो इस तरह की जिस तरह की बदलाव हम में आया है, ये बदलाव को हम लोगों को जो जो एक ही जो पुरानी तौर पे जो माकुले चिल्ड्रन बोलते थे, वो हम लोगों को एक ही तरह से माकुले चिल्ड्रन की तरह बदल दिया है, कि हम लोग जरूर पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग अंदर से कोई चीजों की किसी तरह से परिवर्तन नहीं लाए हैं। परिवर्तन लाने में अक्षम इसलिए है क्योंकि हम लोग ज्ञान को ज्ञान की परिभाषा के तौर पे नहीं देखते हैं। हम लोग ज्ञान को डिग्री के तहत देखते हैं, और किसी तरह से जो जिस तरह की थिंकर्स के बारे में, चिंतक के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम लोग कोई रुचि पूर्वक किसी तरह से हम उनको नहीं समझना चाहते हैं। और इसी तरह की जो प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि तो समाज में, भारतीय समाज में एक तरह से एक जो बोलते हैं कि चैलेंज उभर के आया है, जो समाज को तोड़ने में ज्यादा कठिनाई पैदा करते, समाज को जोड़े रखने में कठिनाई पैदा करते हैं। ये भी बात ताजुब का है कि भारतीय समाज में हम लोग देखते हैं कि जबकि आप अभी 2-4 दिन पेपर में पढ़े होंगे कि एक कांग्रेस, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक भारत जोड़ो मूवमेंट की उनको कल्पना करना पड़ता है। आप सोचिए, जब हम समाज में हम लोग एक साथ जुड़े रहते तो हमको कोई जोड़ो तोड़ो की परिकल्पना नहीं करना पड़ता है, जबकि हम लोग जुड़े हुए हम लोग आगे एक साथ मिलित तौर पर हम लोग आगे बढ़े तो उसमें हमारी सामाजिक चेंजेस आने में एक तरह से सुविधा होता है। लेकिन वो उस तरह की सुविधा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो राजनीति हम लोगों को एक तरह से विभाजित करने में समर्पित है। और अब आज आप देखते हैं, जो पहले हम लोग ग्रंथों में पढ़ते थे कि भाई भाई के बीच में लड़ाई होता था, आज भी आप देखेंगे भाई भाई के बीच में लड़ाई होता है, और किसी भी एक तरह से कोई दुर्घटना घटे, वो दुर्घटना की कम्युनलाइजेशन, जिसको बोलते संप्रदायकरण करना इतना आसान हो जाता है कि पूरे समाज में जो जिस तरह की जो 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 बाकी जो हमारी जो बोलते ना कि अनदेखी अनचाहा शक्तियां हैं, वो शक्तियां उसमें बलभूत हो जाते हैं, जो और ये बलभूत हो जाने पर समाज को तोड़ने में बहुत ही उनको आसान हो जाता है। और इस दिशा में आई थिंक हम लोग के जब हम लोग अपने भारतीय मूल्य धाराओं से प्रेरित होकर, जो हमारे चिंतक जो अपनों में से जो उभरे हैं, हम उनकी अनदेखी जब करें तो इसकी जो कुफल है, इसके जो परिणाम स्वरूप हम लोगों को ये सारे खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज हम चाहे अच्छी तरह से शायद आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा हम संपन्न हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक संपन्न वर्गों को भी इस तरह की इस चीज के भय है कि ये जो आर्थिक संपन्नता है वो आर्थिक संपन्नता शायद सामयिक है, क्यों और ये हर समय के लिए नहीं है, और ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। इसलिए आदमियों के बीच हमारे समाज में एक तरह की असुरक्षा भावना पैदा करते हैं। असुरक्षा भावना इसलिए पैदा करता है क्योंकि हम लोग अपनी समाज से प्रेरित होकर, जो हमारी ये जो पायनियरिंग लीडर्स, थिंकर्स है, इंटेलेक्चुअल थिंकर्स है, गांधी को बोलिए, अंबेडकर जी को बोलिए, जयप्रकाश नारायण को बोलिए, लोहिया जी, राममनोहर लोहिया के बोलिए, और ये सारे जो उनका चिंतन था, ये चिंतन ना कि ओरिजिनल था, ये बहुत ही ओरिजिनल था, और ये हमारे भारतीय समाज के तहत प्रासंगिक भी था। और इसकी प्रासंगिकता जब हम भूल जाते हैं, जब हम बाकियों की जो दर्शन शास्त्र पढ़कर हम उसको अपनाते हैं, उसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान
भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग उसमें देखते हैं कि ये जो समाज है, ये समाज की जो शक्तियां जो इंटरनल फोर्सेस, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो इंटरनल स्ट्रेंथ में हम लोग ये देखने को मिलता है, उसमें बहुत ही कमियां आया। सर आप म्यूट हो गए हैं। अभी अनम्यूट में किया, आप अनम्यूट कर दिए थे क्या? एनीवे, तो हम लोग इसके बारे में शायद और कोई एक समय मिलेगा जिसमें हम लोग अंबेडकर जी का एक जो ग्रंथ है एनिहिलेशन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, उसके बारे में चर्चा कर पाए, उसके बारे में अच्छी तरह से एक विवेचना करके हम लोग उससे क्या सीख मिलता है, वो सीख को हम लोग कैसे अपने दैनंदिन जिंदगी में उसको हम उतार पाए, उसके बारे में जरूर एक पहल करेंगे। आई थिंक इतना ही कह के मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और 10-15 मिनट हम लोग को जरूर चाहिए कि आप लोग सब युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग से आकर आप लोग भी हमारी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप शिक्षा प्रदान करते हैं, आप में भी बहुत बहुत सारे बड़े बड़े आइडियाज होंगे, आप लोगों में भी वो संग्राम की ताकत जरूर होगा जो समाज में बदलाव लाने के लिए सबको प्रेरित कर सके। उसके बारे में हम आपसे कुछ सीख पाए, कुछ जान पाए, कुछ सुन पाए, उसमें हम अपने आप को व्हाट यू से दैट वी विल कंसीडर आवरसेल्व्स टू बी भाग्यवान महसूस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। डेफिनेटली सर, थैंक यू फॉर योर काइंड एंड वर्ड्स ऑफ विजडम। आपका लेक्चर सुनने में वाकई बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लेक्चर लगा सर। इनफैक्ट मैनी पॉइंट्स आई नेवर न्यू, आई जस्ट came to know today after hearing your lecture. If any of the participants are having any question relating to the session, kindly raise your hands. Any participant? Anyone having any question on to? संजय जी, आज आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये अपने आप में ही अजीब लग रहा है, बिकॉज आप एक एक्टिव, हाँ संजय जी ने फाइनली एक अपना हैंड रेज किया। आइए प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मन में आई है वो शेयर करना चाहूंगा आपसे। मैंने अंबेडकर जी को काफी पढ़ा है और मैं पढ़ाता भी हूँ, और मुझे काफी इंटरेस्ट भी है, क्योंकि वो बेसिक बात करते हैं, डाउन ट्रोडन की बात करते हैं। डाउन ट्रोडन किसी एक वर्ग से रिलेटेड वो बात नहीं करते, डाउन ट्रोडन वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के, कहीं भी हो सकता है, तो सबकी वो बात करते हैं। गांधी जी के बारे में जैसे कहा जाता है उनको राष्ट्रपिता का दर्जा है, लेकिन अंबेडकर जी को भी भारत के संविधान का जनक होने का दर्जा प्राप्त है। सर ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि संविधान से देश चलता है, और मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ अंबेडकर जी का सर। थैंक यू संजय जी, ओवर टू यू सर। संजय जी, आप तो पढ़ाते हैं अंबेडकर के बारे में, मुझे एक चीज बताया कि जितने सम्मान हम गांधी जी को देते हैं, उतने सम्मान हम अंबेडकर जी को क्यों हकदार नहीं मानते हैं, और उसमें खामियां किसकी रह गया है? जी सर, ये बिल्कुल सही बात है सर आपकी। जहां तक सर मैं समझता हूँ, अंबेडकर जी को संघर्ष बड़े बेसिक लेवल से करना पड़ा, जबकि जो महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल स्वतंत्रता संग्राम के लिए है। लेकिन अंबेडकर जी तो एक मतलब निचले लेवल से, एक कास्ट के ऊपर भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक जो डाउन ट्रोडन है, उनके लिए संघर्ष कर करके वो राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंचे। और उनका संघर्ष इतना इसलिए भी दिखाई नहीं दिया सर, क्योंकि वो लाइमलाइट में इसी वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि वो ऐसे वर्ग के लिए काम करते जो खुद ही छिपा हुआ था सर। उस छिपे हुए वर्ग को उभारने के लिए खुद अंबेडकर जी भी छिप गए। हाँ, उसमें हम लोग ये देखने को मिलता है शायद वो हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग भारत एक तो जो हम लोग कहते हैं ना कि शक्ति संपन्न राष्ट्र है, अभी भी आप देखें कि भारत को हम लोग एक जाति संपन्न राष्ट्र कहने में भी कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आजकल भी जो हमारी जो जातियों के बीच में हम लोग जो बंधे हुए हैं, उसको हम लोग को दूसरों की जो अच्छाइयां हैं और दूसरे की जो दर्शन शास्त्रों को एक तरह से अच्छी नजरिया से देखने के लिए हम लोगों को उसमें वो रोकता है। आई थिंक भारत को जब हम कास्टलेस सोसाइटी बन जाएंगे, तब हम लोग एक दूसरे की जो अच्छाई है उसको हम लोग समझ पाएंगे।
नो डाउट सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कास्टलेस सोसाइटी ही भारत के उद्धार का एकमात्र रास्ता है सर। थैंक यू, धन्यवाद। Very well said. I also support this. थैंक यू। Anyone else? Any participant wants to ask any other question? Anyone? So, Aarti ma'am, I would request you for the further practice. थैंक यू सो सर मच। मैं भी कुछ बात हाँ कुछ बात मैम, करना यस चाहूंगी। मैम। सर मैं भी अपनी बात ऐड ऑन करना चाहूंगी संजय जी के साथ में, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोग इन कास्ट में जब वोट बैंक समझना बंद कर देंगे, तो मेरे ख्याल से एक वो जो वातावरण बनेगा सोसाइटी का, वो जैसा अंबेडकर चाहते थे या चाहते थे वैसा होगा। आप क्या कहते हैं सर इसके बारे में? सर मेरी आवाज आई अब तक? नहीं, थोड़ा कम हो गया, आवाज कहीं चला गया मैम। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये हम लोग जब तक वोट बैंक इनको समझना बंद करेंगे, कास्ट्स को, चाहे वो माइनॉरिटीज हो और चाहे वो SC ST OBC या जनरल कैटेगरी हो, जब तक हम लोग इनको वोट बैंक समझना बंद करेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा सर। मैडम, वो वोट बैंक की जो चिंता है उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए जो राजनीति में एक चुनाव के तहत जीत आने के लिए राजनीतिक जो दलों हैं उनको तो पहल करना पड़ता है, लेकिन हम लोग में जो सामाजिक तौर पे हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जिस तरह की राजनीति चलता है हमारे समाज में, आज के समाज में, उस पर किस तरह बदलाव ला सके, हम लोग उस पर अपने आप को ध्यान देना चाहिए। और उसमें आई थिंक व्यक्ति के बदलाव में राष्ट्र के बदलाव संभव है, ना कि राष्ट्र के बदलाव में व्यक्ति के बदलाव संभव है। थैंक यू सर। Aarti ma'am, please take over. Yes sir, thank you so much sir, thank you so much ma'am. So now I request our participant Dr. Anju Rani to propose formal vote of thanks to sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मैं सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदी में कंफर्टेबल ना होते हुए भी हिंदी में इतना अच्छा लेक्चर दिया है। सर आपका लेक्चर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल था और उसका उपयोग हम सभी प्रतिभागी अवश्य करेंगे भविष्य में, ये मेरी आशा है। सर आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से हमें डॉक्टर अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बताया और बताया कि वो जातीय व्यवस्था के कारण उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित चिंतक नहीं थे, आपने केवल इस पर बहुत प्रमुखता से ध्यान दिया है, बल्कि विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। अंबेडकर के 3 मूलभूत वाक्य आपने अपने व्याख्यान में हमें समझाए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। सामाजिक असमानता का कारण जाति व्यवस्था है, अंबेडकर जी की विचारधारा को आपने समझाया, जिसका उद्देश्य था मानव समाज के मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना करना और देश की प्रगति। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 का आपने उल्लेख किया। डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन शास्त्र के बारे में बताया। आपने हमें बताया अपने व्याख्यान में कि अंतरजातीय विवाह एक ऐसा उपाय है जिससे जातीय असमानता समाप्त हो सकती है। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर आपने प्रकाश डाला और उनके आर्थिक विचारों पर चर्चा की। सर आपका लेक्चर बहुत ही ज्ञानवर्धक था, बहुत ही उपयोगी था और मैं HRDC जयपुर और अपने सभी प्रतिभागी साथियों की ओर से आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर। और साथ ही HRDC टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सफल आयोजन के लिए कि हमें सर के इन विचारों को सुनने का मौका मिला। थैंक यू। मेरे तरफ से सबको धन्यवाद, HRDC के डायरेक्टर और मेरे कॉलीग्स और बाकी जो हमारी जो सहभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और हम इस चीज की प्रतिज्ञा करें कि एक समाज को, हम अपने समाज को एक अच्छी तरह से एक बलबूत समाज जिसको बोलते हैं कि जो असमन से दूर, जो घृणा से परहेज और बाकियों की जो कुरीतियां उससे दूर एक बलबूत समाज की परिकल्पना के लिए हम अपनी योगदान जरूर करें। और जबकि हम राजनीति में शामिल हो या नहीं हो, लेकिन जरूर देश की राष्ट्र नीति में जरूर शामिल हो जाए।
संजय जी, you are saying something? आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर मैं एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। जैसे अभी अंतरजातीय विवाह की बात हुई, तो मैं काफी समय पहले मैंने संसद में रामदास अठावले जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से, उनको सुना था। तो उन्होंने संसद में बड़े जोर देकर कहा था कि मैं अपनी कास्ट की तरफ से, अपनी जातियों की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि हम आरक्षण छोड़ देंगे, लेकिन संसद एक प्रस्ताव पास करते, एक नियम पास करते संसद में कि सभी जाति के लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे। बस ये बहुत बड़ी बात सर रामदास अठावले जी की तरफ से कही गई। सर आप म्यूट हैं। म्यूट हो गए सर। मयंक जी आप म्यूट हो गए। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Sanjay ji, and we hope for a better future for all of us in with your words. And with these words, respected sir, respected resource person for session 3 of the day, I thank you so much from HRDC University of Rajasthan for being with us, and we'll keep requesting you for blessing us in future as well. And thanks a lot for accepting our invitation. And all participants, all of you may please log off now, and we reassemble after 10 minutes for the 4th session of the day. Thank you everyone. 10 minutes के बाद हम फिर मिलते हैं। Thank you. नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्कार। Thank you, ma'am. Am I? Yes, ma'am, very much. So we I'll will just- start at 3:15. 3:15. You can log in again at 3.14. Okay, and I have 1.5 hours with me, right? Yes, ma'am. In that, around 70 minutes you can take for the lecture, and then the rest of the 3-4 minutes will be you will be introduced to the participants in the first 5 minutes, and there will be a vote of thanks for 5 minutes in the last. So, and 10 minutes at least you have to give to the participants for question answer. So that takes 20 minutes. That takes 20 minutes, and the rest 70 minutes is yours. आप जैसा ठीक समझे, in whatever way you are comfortable, please be bilingual, and if possible, and then you can interact with the participants also in between. Because we were talking yesterday, last night, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you said that I should go in English as well as in Hindi, because people are from Bihar and Rajasthan and Maharashtra, Kerala, Himachal Pradesh, Punjab, everywhere, as it is an online refresher course. That's So- right. That's
Yes, ma'am. So some are demand. Yes, please. All of them are faculty members and they are doctorates? Yes, ma'am. There are 2 associate professors and the rest are assistant professors from law and political science. Like out of the lot, 60% are political science teachers and 40% are law teachers. Okay. Initially, actually 28 of them joined, but 4 of them could not bring their relieving certificates. So there are 24 only right now with us. That's fine. Fine. So if you want, you can switch off your video and audio for the moment and let it be logged in, or you can rejoin, whatever you say, sir. Say, ma'am. I'll rejoin. Okay, ma'am. I've asked the IT guy to run the slides. As soon as you will ask that kindly run my slides, he will run the slides. Okay, that's fine. Yes. Thank you, ma'am. Thank you.